colligative property which we have studied is relative lowering in vapor pressure. Okay, so now the second colligative property which I am going to discuss with you is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Second property which I am going to discuss is elevation. This is the second colligative property, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Okay, elevation in boiling point. I want to remind you again that after doing this theoretical portion, we will be doing 1-2 lectures specially for the numerical portion of these. Okay, so elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Okay, so तुम्हें पता है, once again this concept is related to vapor pressure. This concept is related to vapor pressure. Okay, so first you need to understand what is boiling point. What is boiling point? What is boiling point? Okay, what is boiling point? Okay, it is a temperature. Boiling point is a temperature. Boiling point of a liquid is a temperature at which vapor pressure of that liquid become equal to the atmospheric pressure. Okay, boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of that liquid become equal to the atmospheric pressure. Okay, so atmospheric pressure generally कितना होता है? 1 atmosphere. ठीक है, तो जब भी किसी लिक्विड वेपर्स बना रहा है उसके वेपर्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग और इट्स बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन अचीव्ड. उस टेंपरेचर को बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हो, सो द वेपर प्रेशर व्हेन द वेपर्स ऑफ दिस वाटर वेपर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और यू कैन से बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज कंसीडर्ड एज 1 एटमॉस्फेयर. सो जब पानी को तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हो, सॉरी 100 डिग्री पे पहुंचता है, तो इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. एट दैट पॉइंट इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड वी से दैट दिस टेंपरेचर मींस 100 डिग्री व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिगार्डेड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. गॉट इट? अब देखो, एक प्योर सॉल्वेंट है. वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स आल्सो. वन इज प्योर सॉल्वेंट A. its vapor pressure will be P naught A. P naught A. Okay, and when something is mixed with A, something is mixed with A means some solute is added to A. It forms a solution. It forms a solution means B is added to A. Now it is a solution. It is not a pure solvent. Okay, so vapor pressure in this case is PA. Okay, vapor pressure in this case is PA. We have discussed earlier that vapor pressure of a pure solvent is always greater than vapor pressure of the same liquid when it is present in the solution. When it is present in the solution with the solute, because adding of solute lowers down the vapor pressure. A का vapor pressure इस टाइम ज्यादा था, यहाँ पे इसमें solute डाल दिया, adding of solute lowers down the vapor pressure of a this liquid. Okay, A का vapor pressure B के डालते ही कम हो गया. This is relative lowering in vapor pressure, which was our first colligative property. Got it? So ये आ गया जी. ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये प्रेशर है ज्यादा, मान लो ये प्रेशर है 0.7 एटमॉस्फेयर और ये कम है तो कितना होगा? 0.6 एटमॉस्फेयर है. अब दोनों को बॉइलिंग के लिए कितने टेंपरेचर तक पहुंचना जरूरी है? 1 एटमॉस्फेयर. इसका मान लो वेपर प्रेशर 0.7 एटमॉस्फेयर है. जैसे और वेपर्स बनेंगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, दिस प्योर सॉल्वेंट विल स्टार्ट बॉइलिंग. वैसे ही इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी जब when it will reach 1 atmosphere, this solution will also start boiling. This solution will also start boiling. Okay, so पहले कौन बॉईल होगा? पहले प्योर सॉल्वेंट बॉईल होगा, क्योंकि उसको कम गैप तय करना है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए उसको कम हीट चाहिए, तो वो पहले बॉईल करेगा. ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा, उसका वेपर प्रेशर देख लो, उससे कम है. इसका 0.7 है, इसका 0.6 है. इसको 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचना ज्यादा आसान है, तो ये पहले बॉइलिंग स्टार्ट करेगा, और इसको थोड़ा सा दूर है वो, तो ये बाद में बॉईल होगा. ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बाद में आएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है. तो सोल्यूट डालते ही किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है. यहाँ पे देखो जल्दी आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है. सोल्यूट डालते इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में मींस 1 एटमॉस्फेयर पहुंचने में समय ज्यादा लग जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा. ठीक है, जहां पे 10 डिग्री पे आना चाहिए था वहां पे 15 पे आएगा, लेट आएगा थोड़ा. जहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 पे आना चाहिए सोल्यूट डालने के बाद, वो बॉइलिंग पॉइंट 101 पे आएगा. तो सोल्यूट डालते ही क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड चेंजेस किस तरीके से बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है? आई हैव शोन यू हियर.
कि पहले उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का उससे ज्यादा होगा। बॉइलिंग का मतलब है दोनों को 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचना है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये 1 एटमॉस्फेयर तक पहले पहुंच जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर कम है तो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में, बॉयल करने में इसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अगर प्योर सॉल्वेंट 100 पे बॉयल हो रहा है तो उसमें अगर सोल्यूट डाल दोगे तो वो 101 पे बॉयल होगा, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम है। सो 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट इट विल टेक मोर टाइम। सो गेटिंग इट? सो इसका मतलब है कि दिस सोल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सोल्यूट डालते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। सो दिस इज द सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था पहले कम था, सोल्यूट डालते क्या हो गया, बढ़ गया। सो सोल्यूट के डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया ना। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको देख लो ध्यान से। आई एम रिमूविंग दिस एंड नाउ आई एम मेकिंग अ ग्राफ ओवर हियर। नाउ आई एम मेकिंग अ ग्राफ ओवर हियर। ओके, नाउ I am making a this. Okay. Now I am making a graph over here. ग्राफ देखो बिल्कुल आसान है, जैसे तुमने उसमें बनाया था, क्या नाम उसका, relative loading and vapor pressure में ग्राफ बनाया था ना, between temperature and vapor pressure, the same graph will be there. यहाँ पे क्या आएगा, vapor pressure, यहाँ पे क्या आएगा, temperature, यहाँ पे आएगा वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे आएगा टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक टेम्परेचर। ओके, सो नाउ फर्स्ट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो मैं यहां पे मान लो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर यहां तक खींच के ले जाना है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन हमने मान ली, दिस इज प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ओके, सो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, A which is pure solvent, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू A प्लस B। ठीक है, जब सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वेपर प्रेशर कम होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो इसने क्या किया जी, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा 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 और 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। दिस इज द, इसको क्या बोलेंगे, जहां पे A का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को टच किया, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A। यहां पे A ने बॉइल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस टेम्परेचर को नाम दे दो TB नॉट, TB नॉट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट मतलब प्योर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके वेपर थोड़े, इसका वेपर प्रेशर कम था, तो अब इसने भी क्या किया, इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा और अल्टीमेटली किसके बराबर पहुंच गया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंच गया। सो दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, किस टेम्परेचर पे आया, TB, बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, प्योर सॉल्वेंट होता तो नोट लगा देते, नोट में लगा मतलब सॉल्यूशन का है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना आना चाहिए था, पर सोल्यूट डालते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, यहां आ गया। मतलब मान लो यहाँ पे 10 डिग्री था तो यहाँ पे 20 पे आ गया, यहाँ पे 40 था यहाँ पे 50 आ गया, तो एलिवेट हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितना डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेल्टा TB, दैट इज डेल्टा TB, दिस गैप इज नोन एज डेल्टा TB। गेटिंग द पॉइंट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज डेल्टा TB। ओके, दिस इज डेल्टा TB। ओके, अब वही सेम बात है, जितना तुम सोल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, जितना तुम सोल्यूट डालोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही एलिवेट होगा, more the solute you will add, more will be the this elevation in boiling point. So this difference in boiling point basically depend upon the concentration of solute, depend upon the concentration of solute. Okay, अब concentration of solute you can take in molality, normality, molality you can take in anything. So here we have taken the concentration in this what you say, this molality, concentration of solute in case of vapor pressure. In case of vapor pressure we were taking in this we were taking in mole fraction. In this case elevation in boiling point, concentration of solute, these brackets indicate concentration, concentration of solute will be taken in this small m, molality, small m, molality. Okay, जब इसको हटाओगे some constant will come, so in this case this constant is Kb,
In this case, this constant is Kb. This is known as, this is concentration is taken in molality. Molal. This is elevation. So molal elevation constant. This is called as molal elevation constant, or it is also called as, other name is abelioscopic constant. This is also known as abelioscopic constant. This Kb is either known as molal elevation constant or abelioscopic constant. Got it? Now it is done. Now some more this further mathematical derivation can be done. Delta Tb is equal to Kb. Now molality is number of moles of solute divided by mass of solvent. Given mass of solvent. Number of moles of solute divided by mass of solvent. Okay, taken into kilograms. So what will happen? Delta Tb is equal to Kb. Number of moles of solute means given mass of solute upon molar mass of solute into weight of solvent taken in kilogram. Weight of solvent taken in kilogram. Okay. So this can be the further extension for the numerical portion. This can be the further extension for the numerical portion. Okay. Now this if mass of solvent is not given in kilogram, if it is given in grams, then Kb into Wb upon Mb into Wa. If it is in grams, you have to convert it into kilogram, divide by 1000, means here it will come. So here is the complete derivation for this elevation in boiling point. Okay. So these two properties we have studied. The next two properties we will be studying in the next lecture. Thank you. So hi students, we are studying the colligative properties. Now I will be discussing the third colligative property, that is depression in freezing point. Third colligative property we are going to discuss, that is depression in freezing point. That is depression in freezing point. Depression in freezing point. The third property which we are going to discuss is depression in freezing point. Okay. We have studied lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. Then we have studied this elevation in boiling point. Now we are discussing depression in freezing point. Okay. So if you will understand what is freezing point, then to understand depression in freezing point according to solvent and then solution will be very easier for you. Will be very easy for you. पहले आपको देखना freezing point क्या होता है. ठीक है. Freeze होता क्या है? Liquid solid में freeze होता है. तो freezing point means freezing point, okay, temperature at which liquid और solid का रिलेशन है. freeze का मतलब liquid को solid में convert करना. temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म, क्योंकि ये कि वही लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनेगा तो उसकी जो लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर है, इट शुड बिकम वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म में स्टेट बोलो. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट. ओके. अब तुम्हें पता है लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होता है. अब तुम बोलोगे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो होता ही नहीं है, बट सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, बट बहुत कम होता है, इसलिए तो फ्रीज हो जाता है. लिक्विड को बिल्कुल नीचे लेके आ जाते हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सॉलिड. ओके. तो सॉलिड्स डू हैव वेपर प्रेशर बट वेरी लेस. जब उस वेरी लेस वेपर प्रेशर के बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए, सो दैट लिक्विड विल फ्रीज. सो दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. सो फॉर फ्रीजिंग समथिंग यू हैव टू लोअर डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लोअर डाउन करना पड़ेगा तुम्हें ताकि वो सॉलिड तक पहुंच जाए. ये बात समझ आ गई. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लोअर डाउन करना पड़ेगा. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तुम्हें लोअर डाउन करना पड़ेगा. गेटिंग द पॉइंट? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड शुड बी लोअर डाउन. ओके. अब देखो अब कंपैरिजन किसके बीच में है? कंपैरिजन किसके बीच में है? कंपैरिजन सिंपल सी बात है. कंपैरिजन किसके बीच में है? सोल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में. तो तुम्हें पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओके, T नोट A, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन मीन्स पी ए प्लस बी, ठीक है। इसमें अब सॉल्यूशन मतलब है सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है। वी आर स्टडीइंग द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, सो द फोकस शुड ऑलवेज बी देयर ऑन द सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट की वजह से सब कुछ हो रहा है। ए था प्योर सॉल्वेंट था, उसमें हमने सोल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वी हैव अर्लियर स्टडीड बिकॉज द सरफेस में मॉलिक्यूल्स बी के भी आ जाते हैं तो ए के मॉलिक्यूल्स कम रह जाते हैं, lesser molecules escape out of the surface, so lesser vapor pressure. So solvent का vapor pressure, pure solvent का vapor pressure is always greater than its solution, will always be greater than its solution. ये पता लग गया। अब मान लो, ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसके वेपर प्रेशर को नीचे लेके आना है। कहां तक? इसके वेपर प्रेशर को नीचे लेके आना है इसकी फ्रीजिंग पॉइंट तक, फ्रीजिंग पॉइंट तक, ओके, इसके फ्रीजिंग पॉइंट तक, ओके। और अगर हमने सॉल्यूशन को फ्रीज करना है तो उसके वेपर प्रेशर को भी कहां लेके आना है? इफ वी वांट टू फ्रीज द सॉल्यूशन, इफ वी वांट टू फ्रीज द प्योर सॉल्वेंट, हमें उसके वेपर प्रेशर को कम करना है और फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके जाना है। और अगर हम सॉल्यूशन को भी फ्रीज करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा, हाँ इससे कम होगा, बट उसको भी वेपर प्रेशर को और ज्यादा कम करके फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो कौन जल्दी आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट तक? कौन जल्दी आ जाएगा? इसका वेपर प्रेशर कम है, इसके वेपर प्रेशर को फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके आना, मतलब इसके वेपर प्रेशर को किसके इक्वल करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल करना है और इसको फ्रीजिंग करना है, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाना, मतलब इसके जो प्रेशर है सॉल्यूशन का उसको किसके बराबर करना है? वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म, ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, ओके। सो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इन दोनों का कंपैरिजन करो, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट में जो इसका वेपर प्रेशर होगा वहां तक पहुंचने में इसको समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, कम करते 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 सॉलिड के वेपर प्रेशर आने तक समय लग जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर इसके मुकाबले कम था तो इसको थोड़ा जल्दी से ये सॉलिड के जैसा वेपर प्रेशर अटेन कर लेगा। कंपैरेटिवली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इजियर टू लोअर डाउन, क्योंकि इसका पहले से ही कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है तो सॉलिड के वेपर प्रेशर जैसा पहुंचने में इसका कम है, और कम करना तभी सॉलिड जैसा बनेगा ना। वेपर प्रेशर कम है इसका सॉल्यूशन का, उसको और कम करेंगे तब जाके सॉलिड जैसा वेपर प्रेशर बनेगा, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसको भी कम करना है, तो इसका पहले से कम है तो ये जल्दी से सॉलिड के जैसे वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा। इसका वेपर प्रेशर जल्दी से सॉलिड के वेपर प्रेशर, जो उसकी सॉलिड स्टेटस के वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, और इसका पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसका ज्यादा था तो उसको लोअर डाउन करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, और इसका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम था, तो ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था तो उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर नीचे लगते थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो ये थोड़ा लेट फ्रीज होगा। तो सॉल्यूट डालने के बाद फ्रीजिंग जल्दी हो रही है, पहले सॉल्वेंट फ्रीज लेट होगा क्योंकि ऊपर से नीचे तक लाना है, सॉलिड का मान लो यहाँ पे था, यहाँ तक वेपर प्रेशर पहुंचाना है तो सॉल्वेंट का यहाँ तक, तो यहाँ लाते लाते समय लग गया, और सॉल्यूशन का यहाँ पे था, सॉल्वेंट के मुकाबले कम था तो उसको फ्रीज करना क्या आसान था। तो सॉल्यूट डालने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या जल्दी आ जाता है, मतलब जल्दी आ जाता है, उसकी डिप्रेशन हो जाती है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लेट आता है, सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या लेट आता है, ओके, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है, और फ्रीजिंग का मतलब क्या, वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म का सॉलिड फॉर्म के बराबर लेके आना, गेटिंग द पॉइंट। सो इसका वेपर प्रेशर लिक्विड का कम था, सॉरी सॉल्यूशन का कम था तो फटाफट फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया, और इसका ज्यादा था तो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने में समय लग गया, तो वेपर फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी किसका जाता है, इसका जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आता है, लेट आता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा उसको नीचे आना पड़ता है, इसका जल्दी आ जाता है, तो ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा आएगा, सॉल्वेंट का पहले आ जाएगा कि उसका पहले आ जाएगा, उसका पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम आएगा, सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर उतारने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाएगा, और इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देके ही, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करके ही इसका वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। कम ज्यादा आने का मतलब है कि मान लो अगर ये फ्रीज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फ्रीज कर जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसको ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोल्यूट डालने की वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट्स, कि इसमें सोल्यूट है तो सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट डालने की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम चला गया, कम चला गया मतलब
दूसरे 0 पे फ्रीज हो रहा था, 1 पे फ्रीज हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम जब कर रहे हैं तो जल्दी आ गया ना, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगी। सॉल्यूशन में क्या होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगी, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा का मतलब है उस सेंस में देखना, हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, लो टेम्परेचर की सेंस में, इसका अगर 0 आएगा तो इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्रीज करने में ज्यादा समय लगेगा, और ये 1 पहले आता है तो 1 पहले फ्रीज हो जाएगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ जाएगा ना, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इसके फ्रीजिंग पॉइंट के मुकाबले पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, सो ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गेट्स लोअर डाउन, ठीक है, पहले आ जाता है, पहले आ जाता है, जहां पे 0 डिग्री फ्रीज होना था 1 डिग्री फ्रीज हो जाएगा, ओके। सो ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट द freezing point of a solution lowers down, that's why we write depression in freezing point of depression in freezing point। so जब भी हम solute डालते हैं किसी solvent में, so due to the presence of solute in the solution, due to the presence of solute in the solution its freezing point lowers down, पहले फ्रीज हो जाता है वो, जहां 0 डिग्री पे फ्रीज होना था 1 डिग्री या 2 डिग्री फ्रीज हो जाएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट, so that's why it is also colligative property, it is also colligative property, ठीक है। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, सेम डायग्राम है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, इस तरफ था वेपर प्रेशर, इस तरफ था वेपर प्रेशर, इस तरफ क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें वेपर प्रेशर बढ़ाना था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें हीट देके वेपर प्रेशर बढ़ाना था, फ्रीजिंग पॉइंट में हमें वेपर प्रेशर घटाना है, तो उल्टा डायग्राम चलेगा, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, इसको ऊपर लिख दिया, और ए प्लस बी का क्या कम है, तो मैंने इसको नीचे रख लिया, ठीक है। वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, मैंने इसको ऊपर रख लिया, a प्लस बी का सॉल्यूशन का, ये आएगा प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, इसका प्योर सॉल्वेंट है, ज्यादा मैंने ऊपर रख लिया, और ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है तो उसका मैंने नीचे रख लिया, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, ओके। ये मान लो ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, ये कोई उन्हीं की सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, तो जब इस प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। उसी तरीके से जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा बना दिया, सॉलिड का वेपर प्रेशर काफी कम होता है, सो दैट आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब ए का वेपर प्रेशर इस लाइन को टच करेगा तब वो फ्रीज हो जाएगा, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस लाइन को टच करेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए ने देखो वेपर प्रेशर कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, यहां पे जाके फ्रीज हो गया, ये क्या कहता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। ए बी ने भी क्या किया, वेपर प्रेशर कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, यहां पे जाके ये भी फ्रीज हो गया, ठीक है। तो यहां से मान लो जैसे 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना आ गया, ऑलमोस्ट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, TF लिखेंगे इसको, TF ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना आ गया, ऑलमोस्ट 2.5 आ गया, और जो सॉल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, सॉल्यूशन है तो उसको मैं क्या लूंगा, TF, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, लगभग 1 आ गया, इसका 2.5 आया, इसका 1 आ गया, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी किसका आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी किसका आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ना, ओके। सो जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, वो ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि सोल्यूट ऐड करते ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सोल्यूट ऐड करते ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, सो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जब 100 होना चाहिए 102 आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जब 0 होना चाहिए उसका कम आएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इस गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा TF, डेल्टा TF, इस गैप बोलेंगे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, दैट इज नोन एज डेल्टा TF, दैट इज नोन एज डेल्टा TF, ओके, दैट इज नोन एज डेल्टा TF। अब इसकी देखो मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन तुम्हें करा देता हूं, दैट इज नोन एज डेल्टा TF, ओके, नाउ द बोर्ड इज क्लियर। सो देखो जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन, दिस ब्रैकेट शोज कॉन्सेंट्रेशन, जितनी ज्यादा सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डालोगे दिस फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिप्रेस हो जाएगा या कम हो जाएगा, ओके।
तो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमने ले ली मोलैलिटी में, मोलैलिटी आ गया, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू दिस के एफ एम ले लिया। के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम भी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम भी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। This is the cryoscopic constant and this is video lecture 12. This is video lecture 12 on this video lecture 13. This is video lecture 13 on the this chapter. Cryoscopic constant. अब इसको आगे देखो, आगे तुम इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हो, मोलैरिटी मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, सो डेल्टा टी एफ कैन बी रिटन एज के एफ, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू किलोग्राम। ओके, तो इससे तुम मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया है वो भी निकाल सकते हो, दिस इज द फार्मूला। ओके, so this was all from depression in freezing point. Now one qualitative property is left which we will be discussing in the next lecture.